All of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point. And we are discussing the very important topic of class 12. I think all of you are happy and doing the work regularly, sincerely, with full dedication. Then only you will get success. Okay, let me start the solution of the questions of integral calculus by using the substitution method, which is very, very important. And throughout the integral calculus, you will have to use this method. Without this method, it is very difficult to find out the solution of the questions. That is why you must have to concentrate properly. I am taking the solution of the question from question number 1 to 10 in my previous video. Now I will start the solution of the question from question number 11 of exercise 7.2, which is very, very important, my dear student. Okay, let us start. But before starting the solution of the questions, my dear student, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे बाकी बच्चों को भी फायदा मिले, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू as early as possible. Okay, let us start the solution of the question. Find the integration of the following functions. What functions? X upon root x plus 4, very important. But I told you that we are doing the work under the substitution method. That is why you take the proper substitution. You must think, whenever you will have to practice the maximum number of questions, then only automatically the thing will come, what may be the proper substitution for this particular question. Then only you will be in a position. Okay, now you see x plus 4, this is the question, integral of x upon root x plus 4 with respect to x. Let me take put substitution method. Put x plus 4 is equal to t. My dear student, see carefully. T implies that t की value क्या होगी? What will be the value of x? X will be equal to t minus 4. Whenever it will be required, तो मैं ये value substitute करूँगा भाई. X के स्थान पे t minus 4 I will substitute. Okay. Let us see. Differentiate on both the sides. Dx is equal to dt. Most important question. Okay. Let me take. My dear student, x, I told you already, in place of x you will have to write t minus 4. In place of x, t minus 4. Divided by, in place of x plus 4, that is root t. Or dx will be equal to what? dt. Now my dear student, what is the meaning of root t? Root t means half power. And half power, whenever you will take in the numerator, power will be negative. Power negative हो जाएगी भाई, देख लीजिए. t minus 4, t to the power minus half or dt. Most important question, my dear student, you must have to see. इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं. That is why, my dear student, multiply by t to the power minus 1 by 2 inside the bracket. T into t to the power minus 1 by 2 minus 4, t to the power half, negative half and dt. First of all, you must have to change it into proper form. Proper form में उसको चेंज कर लीजिए. देखिए t to the power, ये देखिए यहाँ पे algebraic condition है a to the power m into a to the power n, it will be equal to a to the power m plus n. तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ. 1 minus 1 by 2. Same kind of formula I am just using. t to the power minus 1 by 2 dt. It will be equal to what? My dear student, you take the LCM of it. That will be t to the power half minus 4 t to the power minus half. Now we will integrate it. We will find out the integration of it. Very simple. What the formula you will use for integration? First of all, my dear student, the basic concepts are required to use x to the power n plus 1. चूंकि एक पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में, बस ये याद रखना है. प्लस c means arbitrary constant. In the indefinite integration, generally we use. Detail I have discussed already. T to the power half plus 1 minus 4, t to the power minus half or plus 1. Similarly, minus half plus 1 plus c. This is the integration, my dear student. You take the LCM of 1 upon 2 plus 1. That will be 3 by 2. Similarly, here also 3 by 2. 3 by 2. Then it will be 2 by 3. 2 by 3 will be here. And minus, similarly, my dear student, minus 1 plus 2, 1 by 2. That means 2. 2 you multiply in the numerator, 8. T to the power half plus c. My dear student, this is the integration of it, but
इंटीग्रेशन यू विल हैव टू फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। क्या है भाई? एक्स। एक्स की फॉर्म में ही इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? टी के स्थान पर रख दो क्या? एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 टू द पावर हाउ मच? 3/2 माइनस 8 और एक्स प्लस 4, इसको रूट एक्स भी रख सकते हैं भाई, प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन, देखिए कितना इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाता है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कितने बार एग्जामिनेशन में आ चुका माय डियर स्टूडेंट? बहुत बार आ चुका। दैट इज व्हाई यू विल हैव टू सी केयरफुली दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो क्या है, हम लोग सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बाय एंड बाय सिंपल क्वेश्चन से ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। -1 देखिए टू द पावर 3। अब इसी तरह का क्वेश्चन जब जनरली एकदम ऑल ऑफ सडन एग्जामिनेशन में आता है ना, स्टूडेंट फील वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट प्रोसीजर वी विल यूज ओवर। अब देखिए यहाँ पे क्या, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x²। तो इसलिए इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। कैसे ब्रेक करेंगे भाई? देखिए वी विल ब्रेक, चलिए मैं इसको यहीं लिख देता हूं सो दैट इट विल बी। देखिए एक चीज मैं और बताऊंगा आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, बच्चे जनरली गलती करते हैं इवैल्यूएशन में, मैंने देखा इवैल्यूएशन के टाइम पे ये जो यहाँ पे इक्वल सिंबल है, ये एकदम एक लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में। दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। और कभी हम यहां लगा देंगे, कभी यहां लगा देंगे, उसका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों को x टू द पावर 3, अब देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं भाई, x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया इसका, आई टोल्ड यू व्हेन बेस इज सेम एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, इट विल बी इक्वल टू बेस टू द पावर सम ऑफ द एक्सपोनेंट। ये रूल है हमारा। और इसको क्या करेंगे? x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t, 3x² dx इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? x² dx चाहिए इज इक्वल टू dt/3 कर देंगे, dt/3 x² dx। इसके स्थान पे मुझे ये dt/3 रखना है भाई, देखिए ठीक है, dt/3। और 1/3 को मैं बाहर कर दूंगा भाई, देखिए इसके स्थान पे क्या करेंगे? इन प्लेस ऑफ x टू द पावर 3 दैट विल बी t इनटू, my dear student, you see x to the power 3, x to the power 3 will be equal to t plus 1, t plus 1। 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, t plus 1 हो जाएगा x to the power 3 की वैल्यू। इन प्लेस ऑफ x to the power 3 माइनस दैट विल बी 1, ओके। इन प्लेस ऑफ x to the power 3 दैट विल बी t plus 1 और x² dx दैट इज dt। 1/3 I have already taken, my dear student, very simple question. I have changed it by using the substitution method in the simplest way. तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट? t² प्लस t। अब देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, 3 t टू द पावर 3/3। अब तो आप परफेक्ट हो गए इंटीग्रेशन में, प्लस c इट विल बी 2 t²/2, ओके, प्लस। बट मैंने बताया था इंटीग्रेशन दैट शुड बी इन द ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म। t को किस में चेंज कर देंगे? x की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो t के स्थान पर रख दीजिए x टू द पावर 3 माइनस 1, लेकिन टू द पावर 3 करना पड़ेगा भाई, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। यहां पे क्या कर दूं? सेम थिंग, x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट माय डियर स्टूडेंट। मैं इसको बाहर कर देता हूं, या फिर इसको लेट मी मल्टीप्लाई, इसको भी यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लीजिए इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 1/3 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है। 1/3 है बाहर में ना, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 9 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 6 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, मोस्ट इंपोर्टेंट। पता नहीं कितने बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो इसलिए बी केयरफुल। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। My dear student, I will tell you the solution of each and every question so that
you will be in a position to solve the question. Okay, question number 13, very important question, but you must have to keep in mind there must be proper substitution. You must have to apply your brain. x to the power 2 और dx भी मैं यहीं कर देता हूं. Let me take, and that will be 2 plus 3 x to the power 3 and whole square to the power 3 dx. This is the question, my dear student. Proper substitution क्या होना चाहिए इसमें. अब इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x to the power 3 x to the power 2 है. Put 2 plus 3 x to the power 3, it will be equal to what? t. अब देखिए 3 9 x square dx will be equal to dt. डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने दोनों साइड का. डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? dt by 3, dt by 9. मुझे वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx. x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू चाहिए dt by 9. ओके, दैट इज व्हाई यू सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू. 1 upon 9, I will take it out, dt by 9, and it's in its place, that will be dt divided by t to the power 3. I have changed it to the simplest form, my dear student. My dear student, you must have to follow the technique of the solution of the question also. हमको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी इधर कीजिए. इक्वल साइन पूरा वर्टिकली होना चाहिए. If you want to give, these are the tips to give the credit point against the solution of the question to get the full marks from the examination. एग्जामिनर से तो मार्क्स छीनने के लिए स्टूडेंट को उसको बताना पड़ेगा ना किस तरह का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं. मैंने देखिए हर स्टेप लिखा है तो मुझे हर स्टेप पर मार्क्स दीजिए. ये आप एग्जामिनर को बताएंगे आफ्टर गिविंग द सॉल्यूशन. दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. यू मस्ट हैव टू गिव ईच एंड एवरी स्टेप. Okay, my dear student, 1 upon 9 t to the power minus 3 dt. Easily you can find out now the integration of it. T to the power minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 and plus c. c लिखना नहीं भूलना है भाई. जनरली बच्चे क्या करते हैं, dx तक नहीं लिखते. dx, यदि आपने dx नहीं लिखा, dt नहीं लिखा, तो क्वेश्चन इज मीनिंगलेस. Okay, that is why you see integration. Let me take the integration of it. How much? t to the power minus 2 and minus 2 plus c. Okay, 2 and 2 4, sign negative 1 by 4, and t to the power, let me take t square in the positive form, it will be equal to minus 1 by 4 and 1 upon t. t की वैल्यू रख लीजिए 2 plus 3 x to the power 3. देखिए मैंने easiest वे में ही इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, t square और प्लस c. My dear student, you see the solution of the question technique. That is why it is very, very important question. See, let me take question number 14. Question number 14, which is also a very, very important question. For question number 14, let me take the solution of it by substitution method. All the questions we are just solving by using the substitution method. Integration of 1 upon, ये सारे के सारे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट पता नहीं कितने कितने बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए. टू द पावर m और x इज ग्रेटर देन 0. m डज नॉट इक्वल टू 1. m 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई. x की वैल्यू देखिए, यही क्वेश्चन है, अंडर कंडीशन है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. क्योंकि log 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसलिए वहां पे दिया हुआ x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से, नहीं तो फंक्शन यूजलेस हो जाएगा. मींस इट विल बी इन द इंडिटरमिनेट फॉर्म. यू कांट डिफाइन दिस फंक्शन देन इफ इट इज 0. 1 upon 0 नॉट डिफाइंड फंक्शन. 1 डज नॉट इक्वल टू 1. 1 नहीं होना चाहिए भैया की वैल्यू. 1 हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकती है. ओके, लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट, लेट पुट log x will be equal to t. 1 upon x dx will be equal to dt, nothing else. देखिए यहां पे क्या है, dx, क्योंकि इंटीग्रेशन है, dx upon x हो जाएगा. लेट मी टेक dx
देखिए यहाँ पे dt रख दीजिए dt और dx अपॉन x दैट विल बी dt और m हमने ये जूम किया t टू द पावर m t टू द पावर नथिंग एल्स इट विल बी इक्वल टू व्हाट t टू द पावर माइनस m dt बस इसका इंटीग्रेशन निकालना वेरी सिंपल केवल सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपके ब्रेन में होना चाहिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली देखिए इट विल बी इक्वल टू t टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c माय डियर स्टूडेंट इसको मैं क्या करूंगा 1 माइनस m कर देता हूं ठीक है और ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 1 माइनस m ठीक है क्योंकि यहां भी नेगेटिव साइन ले लेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा चलिए m माइनस 1 कर देता हूं t टू द पावर m माइनस 1 ठीक है क्योंकि माइनस लूंगा तो तभी तो पॉजिटिव होगा ना माइनस मैंने साइन बाहर ले लूंगा देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए तो m माइनस 1 हो जाएगा और नीचे आने से वही पॉजिटिव हो जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा ठीक है प्लस c इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस m माय डियर स्टूडेंट यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t log x to the power how much m minus 1 plus c this will be the value of it this is the integration of it most important thing okay you must have to keep in mind only the proper substitution what should be the proper substitution okay let me take the question number 15 my dear student which is also important question each and every important question I am taking and I am giving the solution of each and every question so that you will be benefited क्वेश्चन नंबर 15 का इंटीग्रेशन देखिए भाई मैंने बताया ना सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर यू विल हैव टू टेक -4x²। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग फर्स्ट प्रोसीजर दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड उसी से ही हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे 9 - 4x² इज इक्वल टू t पुट अप कर देते हैं लीजिए पुट अप कर दिया हमने डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स डिफरेंशिएशन ऑफ 9 0 और इसका क्या होगा 4 × 2 8x dx इट विल बी इक्वल टू d बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है माय डियर स्टूडेंट dt/8 ओके दैट इज व्हाई यू सी इसकी वैल्यू हमारे पास है यही वैल्यू हमको लेनी है क्या हो जाएगा x dx के स्थान पे क्या करोगे रख दीजिए क्या -1/8 और dt/t देखिए कितने सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया हमने क्वेश्चन को। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तुरंत चेंज कर देता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t my dear student always you put in the absolute symbol because the value of log you can find out the log of positive numbers only not of the negative number it will be equal to 1/8 log what does it mean t की value 9 - 4x² plus c this is the solution of it let me take question number 16 most important question 16 what is the question number 16 all are very simple generally such questions comes in the MCQ 16 integration of e to the power 2x plus 3 and dx इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है then what will be its integration what will be the substitution put 2x plus 3 is equal to t पुट अप कर देते हैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर दीजिए dx is equal to dt और यहां तो हमको dx की वैल्यू चाहिए तो dt/2 हो जाएगा। देखिए दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया मैंने कितना हो गया भाई बताइए e to the power t और dt/2 ओके 1/2 को बाहर कर दो माय डियर स्टूडेंट e to the power t का इंटीग्रेशन क्या होता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t e to the power t itself e to the power t plus c देखिए कितना सिंपल है 1/2 e to the power t write the substitution original variable for and plus c this will be the integration of it my dear student I will take each and every question पहले मैंने बता दिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं these questions are just like your basic concept अब बेसिक कंसेप्ट जिसके पास होते हैं ना वो कभी मैथमेटिक्स में ये
डिफीट नहीं हो सकता, नोबडी कैन डिफीट हिम इन मैथमेटिक्स। क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर। देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, जब अच्छी तरह से प्रैक्टिस, इफ देयर इज नो प्रॉपर प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, whenever the question will come in the examination, after seeing the face of the question, they gets afraid how we will solve it. That is why there must be proper practice. Put x square is equal to t. Put. What does it mean? Differentiate on both the sides. dx will be equal to dt. x square का differentiation 2x और x dx, क्योंकि उसको देखिए ना हमारे पास क्या गिवन है, what is given, x dx है ना, तो बस x ds रख लीजिए। देखिए 1/2 को मैं बाहर कर दूंगा भाई, और x dx के स्थान पे क्या रखूंगा, dt by what, e to the power t। देखिए x square is equal to t, what does it mean, देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, e to the power minus t dt। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अब इसमें क्या करोगे, देखिए e टू दी पावर नेगेटिव t आ गई, ठीक है, e टू दी पावर, देखिए इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax विद रेस्पेक्ट टू e टू दी पावर ax अपॉन a प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। देखिए यहां पे जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें गलत करेगा ही करेगा स्टूडेंट। ax इज इक्वल टू t, पुट, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, a dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, e टू दी पावर ax और dx, क्या होगा भाई, e टू दी पावर t और dt बाई a। देखिए 1/a आ गया ना, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन सेम थिंग प्लस c, और e टू दी पावर क्या आ गया, ax, t का मतलब क्या है देख लीजिए, ax और प्लस c अपॉन a। देखिए ये a कहां पे आ गया, a दैट इज इन द डिनोमिनेटर, यू सी। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, e टू दी पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस c। आई टोल्ड यू इन डिटेल सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। ये कहां से आ गया, क्या होगा भाई, माइनस 1/2, e की वैल्यू बता दीजिए भाई, e की t की वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ट्वाइस e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग नाउ, आई विल टेक ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सी क्वेश्चन नंबर 18, माय डियर स्टूडेंट, it is such a question which generally comes in different types of examination. My main objective is that to make the solution easy for you, to provide the solution easy of the questions for you. You must have to select the proper substitution in this question. That is the MCQ type question generally asked against 2 marks in different types of competitive examination and whatever it may. तो क्या होगा भाई, देखिए पुट, मुझे पहले लग रहा चुके tan inverse x is equal to t. Why I put tan inverse x is equal to t, because in the denominator it is given 1 plus x square. And what is the differentiation of tan inverse x? 1 upon 1 plus x square, automatically आ जाएगा, इसलिए मैंने tan inverse x को क्या पुट कर दिया। Take the differentiation of both the sides, x square dx is equal to dt। देखिए 1 upon 1 plus x square dx क्या है इसके इक्वल, देखिए किसके इक्वल है, dx upon 1 plus x square that is dt, और e to the power tan inverse के स्थान पे क्या रखूंगा, t और dt, नथिंग एल्स। हो गया मेरा सॉल्यूशन, e to the power t dx upon 1 plus x square that is dt। ओके, e to the power t and plus c, e to the power t tan inverse x। माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जो क्वेश्चन को इजी बना देता है, बस यू थिंक ओवर इट। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एवरीवेयर यू विल हैव टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, विदाउट इट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। अब मैं क्या करूंगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूं। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जनरली पजल हो जाते हैं बच्चे इसको देखने से। क्वेश्चन नंबर 19 को 1920, question number 19 is what?
You see, e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 और dx. इस क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा हमको करना क्या है. You must have to see first of all what I shall do. Let me divide in numerator and denominator by e to the power x. Dividing in numerator and denominator by e to the power x. से डिवाइड कर देता हूं. देखिए भाई, e to the power 2x अपॉन e to the power x पूरे में e to the power x पूरे में डिवाइड करूंगा भाई. e to the power 2x अपॉन e to the power x प्लस 1 अपॉन e to the power x और dx. तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए e to the power 2x और माइनस x. जैसे मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था आप लोगों को. क्या क्या फॉर्मूला बताया था भाई? a to the power m into a to the power n, it will be equal to a to the power n plus n. यही तो चीज है यहाँ पर. e to the power 2x into e to the power minus x. ये तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस e to the power minus x अपॉन e to the power 2x into e to the power minus x, e to the power minus x और dx. इनके इसको न्यूमरेटर में ले लिया मैंने, सबको नेगेटिव पावर हो गई. चलिए, by using this formula e to the power 2x बेस सेम है ना, एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा e to the power x पॉजिटिव, e to the power minus x और यहाँ पे क्या आ गया e to the power x और प्लस e to the power minus x. बस अब प्रॉपर फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट apply the substitution method. e to the power x plus e to the power minus x will be equal to t. My dear student, differentiating on both the sides, e to the power x का differentiation e to the power x होता है. देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव, मैंने नेगेटिव साइन पहले लगा दिया, क्योंकि e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e to the power minus x, और माइनस x का दोबारा से करोगे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो माइनस 1 हो गया. माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा. dx इट विल बी इक्वल टू dt. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखिए न्यूमरेटर में यही दिया हुआ e to the power x माइनस e to the power minus x dx. उसके स्थान पे क्या रखूंगा, इसके स्थान पर रखूंगा dt. देखिए dx dt आ गया 1/t. देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कितना हो गया भाई इसका t. मैंने बताया था वैल्यू ऑफ लो यू कैन फाइंड आउट of the positive numbers only. That is why it should be positive. इसलिए मैं एब्सोल्यूट सिंबल लगा देता हूं भाई. लो t की वैल्यू रख दीजिए फिर e to the power x plus e to the power minus x plus c. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली स्टूडेंट ही पजल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसी तरह का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. लेट मी सी क्या करेंगे भाई. 20 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus e to the power minus 2x. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी वो अभी बताता हूं. e to the power minus 2x और dx. मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम फंक्शन है और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. पुट e to the power 2x plus e to the power minus 2x is equal to t. डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स. देखिए e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x का फिर से कर दीजिए 2. इसमें भी e to the power minus 2x और minus 2 और dx इट विल बी इक्वल टू dt. इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं. क्या चीज कॉमन है बता दीजिए भाई जरा. 2 कॉमन है ना. e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt. और ये dt by 2 कर देता हूं भाई. e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx इट विल बी इक्वल टू dt by 2. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके मैंने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया. देखिए यही न्यूमरेटर में है ना. देखो e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx. देखो यही है. इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 dt by 2 है ना, इसलिए मैंने पहले ही dt by 2 कर दिया. 1/t नथिंग एल्स. देख न्यूमरेटर इनटू dx सेम थिंग. कितनी वैल्यू आ गई भाई 1/2
integration of it 1 upon t 1.2 log. My dear student, take the value of t e to the power 2x plus e to the power minus 2x and plus c. Most important question, my dear student, it will help you a lot to find out the solution of a number of questions. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट. एट लास्ट, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, टेक्निक अच्छी लगी है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो एक लाइक तो बनता है. लाइक कीजिए माय डियर एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल. ओके, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.